of you keep yourself up to date with current affairs and whatever happening is in the global world or whatsoever around you even? दो हफ्ते पहले कोई हाँ सही 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 2 हफ्ते पहले कोई सिग्निफिकेंट कुछ हुआ है रीजन के अंदर? आई थिंक दैट्स प्रीटी मच स्पेस अफेयर नहीं? So how could you just give me this blank face and respond like you don't know anything and you are out of the world or something like that? See, when you are in the class, you have to be very much attentive of what a teacher is talking about, right? ठीक हो गया? एक बात तो ये हो गई. दूसरी, आप यहाँ पर आ रहे हैं for CSS classes, you have to have some background information or knowledge और prior आपका एक थोड़ा सा जो है ना established perspective establish होना चाहिए आपका. सही है? Why? Because only then you will be able to comprehend whatever the teacher is teaching to you. अगर आपको पहले से थोड़ा बहुत ग्राउंड का पता होगा, थोड़ा बहुत पता होगा चीज़ों का कि टीचर किस बारे में बात कर रहा है, तो आप उस बात को या उस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने में कामयाब हो सकेंगे. ऐसा ही है. अगर आप ब्लैंक फेस लेकर आ जाते हैं यहाँ पे एंड यू जस्ट rely on the teacher to give you everything, it is not possible. We can help you out, but it is to the extent, right? We cannot actually just solve it all in a cup and just give you to sip it and have it all, that knowledge and information going in your blood veins and you will be sub-champion or something like that. It cannot happen. So yeah, I'm going to talk about space and how it is relevant to international affairs, international relations particularly, right? Chandrayaan-3, this moon landing was one of the significant development in the region, but it was not confined to the region. It has actually sent signals to international community as well. There are many developed countries who have not been able to achieve this status which India has achieved by successfully launching its vehicle on the moon, right? Why? I mean, how it happened and why India was able to do that? Like, why it landed its thing on the moon? What was the purpose? To find some kind of वहाँ पे जैसे हाइड्रोजन को हमको फाइंड कर रहे हैं कि जो उनको यहाँ पे हेल्प आउट हो सकते हैं किसी पर्पज से बिजनेस वगैरह जो है जो मूल तो उन्होंने लैंड किया है तो बिजनेस वगैरह की वहाँ पे डिसाइड वगैरह करके लिए Okay. Anything, whatever you have in your mind, just shoot it. About space or about moon landing? About moon landing first. Like, what was the purpose of India? Why India landed its vehicle and why India sent this mission to moon? What were the goals of India? Like, if Pakistan is our country, right? If we have set some goals, so why we did it? Like, if we have become an atomic power, if we have tested our nuclear bombs, why we did it at first place? What was the reason? Superpowers are fighting for superpowers are fighting for even in space. Right. So India was not in that race, but it's the initial step that India has taken to beat other countries in that race. To beat other countries and to actually give this signaling or establish this status or align themselves with the goals of superpowers. This is what you are saying, right? Right. Any one of you? Space war की वजह से. So do you think this has anything to do with the militarization of space? Just start the end, they will use it for multiple. जिस रीजन में उन्होंने भेजा है वो ब्लैक रीजन निकाला है यहाँ माइनॉरिटीज़ को सबको वहाँ में ले जाके फेंकना है इसलिए रिसर्च बेस के लिए गए होंगे. शायद कोई पानी पीने लायक जवाब चाहिए कुछ भी जो भी है आपके जहन में प्लीज़ उससे कहिए.
दौर में अगर किसी स्टेट को अगर तरक्की चाहिए तो उसको अपनी जगह स्पेस में बनानी है। Space में? ठीक है, और सॉरी अपना इन्फ्लुएंस दिखाना चाहता है इंडिया, इस वजह से आपने कुछ बताया था। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। दूसरे चले गए तो हमें भी जाना चाहिए, हमें भी जाना चाहिए। हमारी इकोनॉमी इतनी वेल जनरेटेड नहीं बनता। हमारी इकोनॉमी इतनी वेल जनरेटेड नहीं है, उनकी इकोनॉमी है इतनी वेल जनरेटेड। Do you have anyone, like every one of you have phones, right? Do you guys have internet connection in your phone at the moment? Do you have it? Every one of you? Mostly सबके पास है ना, कितने लोगों के पास है इंटरनेट कनेक्शन, फोन्स? फोन तो होगा ना? No, नहीं, this moment मैं अभी की ही बात कर रही हूँ, अभी है। Can you Google this one thing? What is the poverty rate in India? I want you to do that. Google it. What is the poverty rate in India? गुर्बत कितनी है हमसे ज़्यादा? I don't know ना, you need to check. ऐसे ही कयास आ रही है, नहीं लगानी है, you need to check. That's why I asked you ना कि आप उसको check करें. नहीं, I can help. It's okay. 14.96। पाकिस्तान की कितनी है? 40.96 और 14.9. 14. और what is your source? No. UNDP? Cool. Now search how much it is in Pakistan? 37.8. 37.8. 162. 37.2. 37.2, right. ठीक है, पाकिस्तान में 37.8 और इंडिया में 37.2. सॉरी 37.2. 37.2 सही है। और नहीं, पॉपुलेशन तो है ज़्यादा, मैं तो सिर्फ पॉवर्टी की अभी एक बात कर रही हूँ ना, सिर्फ एक चीज़। हाँ होगी, लेकिन विल कम टू इट ना, जस्ट वेट फॉर अ वाइल मे बी, सो आई कैन मेक सम राउंड अबाउट इट। सही है। अच्छा, हम बात ये कर रहे थे कि स्पेस की, आपने कहा कि हमारी इकॉनमी जो है वो इतनी वेल जनरेटेड नहीं है बेसिकली, तो इसलिए नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ यू रिमेंबर कि हमने अभी क्या किया है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि स्पेस के ज़रिए होता क्या है बेसिकली, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, इफ एनीवन कुड। वन बाय वन, 5 क्लास नहीं है ये, 1 by 1। सॉरी, बस कौन है, कौन है ना? आपको कहीं जाना होता है कभी, कैसे जाते हैं? अब रास्ता नहीं मिलता है, कैसे करते हैं? गूगल मैप। वो गूगल मैप कैसे आपको गाइड करता है? यू वेलकम। हाँ जी, आप ग्रीन शर्ट, ज़ोर से, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, आवाज़ नहीं आती है। मैं ये पूछ रही हूँ सर कि एप्लीकेशंस ऑफ सैटेलाइट या एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है, आप कर बता सकती हैं थोड़ा सा? कुछ है जहन में? स्पेस टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा है, फिर हमारे रोड मैप्स वगैरह में हेल्प कर रहा है। यू कीप सेइंग। फिर उसके बाद टेलीविजन में जो न्यूज़ वगैरह आती है, मतलब जो चैनल्स वगैरह, उसको कनेक्ट कर, उसके थ्रू हमें कनेक्ट कर रहे होते हैं वर्ल्ड वाइड। सही है। इंटरनेट तो वो सेल फोन पे आएगी कम्युनिकेशन पर। और सिर्फ नेटवर्क। वेदर
वेरी नाइस। वेदर फॉरकास्ट और डिफरेंट कंट्रीज पे चेक करते रहते हैं। रिसर्च। ओके। और सोर्सेज इंक्रीज करने के लिए भी, क्योंकि जो रिसर्चेस वगैरह होते हैं तो रिसोर्स मैनेजमेंट, सोर्सेज इंक्रीज करने के लिए, सॉरी प्लैनेट एक्सप्लोरेशन के लिए। प्लैनेट एक्सप्लोरेशन वो उसके अंदर आ गया ना, रिसर्च के अंदर आ गया ना, प्लैनेट एक्सप्लोरेशन हो गई। बल्कि ये प्लैनेट एक्सप्लोरेशन नहीं होगी, इंट्रा प्लैनेट एक्सप्लोरेशन होगी अभी तक तो। सॉरी, सिक्योरिटी कैसे बेस्ट होती है, बेस्ट बनती है बेस्ट? Can we call it? हाँ? सही है। और What I was talking about, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर आपकी बात क्रेडिबल कैसे होगी जब आप उस फैक्ट को एक्यूरेटली लिखेंगे, सही है। और कोई भी फैक्ट चेक आप कैसे करते हैं, मैंने अभी एक सवाल किया था कि व्हाट इज़ द सोर्स, somebody said UNDP. So UNDP is a credible organization, right? So you can actually rely upon the sources or statistical data which that is providing, सही है। तो ऐसी कोई भी सोर्स हो जिसको आपने कोट करना है कहीं पे, या हर बात जो भी आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहीं भी, उसको आपने फैक्ट चेक करना है हर सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। ये कुछ कोर वैल्यूज़ हैं जो आपको करनी ही करनी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपका जो वो पेपर के अंदर जो भी आप लिख रहे होंगे, वो नंबर्स जो आप वहाँ पे लिखेंगे, वो जो आप कोट वहाँ पे डालेंगे, वो फिर गलत हो जाएगी। वो गलत होने से क्या होगा कि वो इम्प्रेशन आपका, एक तो नंबर तो कटेंगे ही ऑफ कोर्स, लेकिन आपका जो इम्प्रेशन है ना वो गलत पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। अल्टीमेटली दे विल से और दे विल हैव दिस पर्सपेक्टिव इन देयर माइंड कि इसने एक जगह पे गलत लिखा है, इसने आगे की फिगर्स में भी प्रॉब्लमेटिक किसकी सिचुएशन होएगी, तो फिर वो इट टेंड्स कि आपका जो है ना नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ये तो हम सिर्फ पेपर्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं ना। इसके अलावा भी अगर आपको अपनी कहीं पे भी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करनी है ना, अपनी बात मनवानी है, या आपने अपने आप को सच्चा कहीं पे भी जाहिर करना है ना, तो आप बेसिकली अपनी बात के अंदर वज़न लेकर आएंगे। वो कैसे लेकर आएंगे कि जो भी आपने बात करनी है, सोर्स कोई भी रेफरेंस आपने कोट करना है, वो रेफरेंस बहुत मुस्तनद होना चाहिए। ऐसे ही है, हम अगर अपने इस्लाम की बात कर लें, शरीयत के अंदर अहादीस होती हैं, कुछ अहादीस को कहा जाता है ज़ईफ़ हैं, कुछ अहादीस होती हैं जो हम में से हर एक को पता होती हैं, ठीक है। और विद टाइम ऐसा हो रहा है कि हमें बहुत सारी अहादीस का इस तरह पता चल रहा है कि हम हमेशा से ये समझते आए थे कि दिस इज़ अ करेक्ट वर्जन, हाउएवर इट्स नॉट वेरीफाइड, राइट। सो यू शुड नो कि वट एवर द नॉलेज यू आर हैविंग, वट एवर द इंफॉर्मेशन यू आर हैविंग, इट शुड बी वेरीफाइड, सही है। इट शुड बी वेरी मच कमिंग फ्रॉम अ वेरी established source, to say the least, सही है। Only then you can have the weight in your stance or in your conversation or in your papers, whatever the writing you are going to do right there, सही है। We were talking about the space applications. These are some of the space applications which we have mentioned over there, but there are certain other applications as well, ठीक है। How many of you are aware of this Elon Musk? Every one of us, maybe, सही है। And what do you know about it? Like who he is and what he does? He owns a company, SpaceX, and mission and wants to make a colony in Mars. And he is studying. Very nice, very nice. And हाँ, Twitter ओनर है, सही है। और इसके अलावा हाँ जी, आगे आ जाए ना, आप यहाँ आ जाएं। इधर आ जाएं, कुछ इधर आ जाएं, कोई मसला नहीं है। आप भी आ जाएं, इधर आ जाएं, कोई मसला नहीं है। हाँ जी, टेस्ला है, स्पेसएक्स है, और क्या है? He owns Twitter, okay, और? He changed the name from Twitter to X. बस that's it, that's all you know? Sorry? यार मैं बूढ़ी हूँ ना, मुझे ज़ोर से बात किया करो ना ताकि मुझे आवाज़ आए। क्या चल रही है? He is one of the richest. He is not the richest, I doubt. He is one of the richest. मेरे ख्याल से
जेफ बेजोस है ना, थर्ड है जेफ बेजोस, और फर्स्ट जो है वो मेरे ख्याल से कोई वो है यूएस फर्स्ट है, फ्रेंच कोई बंदा है, फ्रेंच है, या उसके बाद फिर वो फ्री मेसन वाले हैं, उसके बाद फिर वो रॉथशाइल्ड फैमिली है, समथिंग लाइक दैट. एनीवेज, the point why I asked you, Elon Musk is a person, he was an entrepreneur, right? And then he established these companies, or even if he did not establish, at the moment he is having these ownership of these companies, Tesla और आपका क्या कहते हैं SpaceX हो गया. तो हम टेस्ला को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं, ऑल्दो टेस्ला इज़ इक्वली रेलेवेंट टू व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, बट हम इसकी बात करते हैं, स्पेस एक्स की बात करते हैं. स्पेस एक्स बेसिकली क्या करता है? सॉरी, प्रोवाइड इंटरनेट, स्पेस शिप्स बनाता है. अच्छा, और आपने ऐसे सर हिलाया, इसका मतलब है कि इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करता. और सॉरी, नहीं, आई एम नॉट आस्किंग यू व्हाई, आई एम आस्किंग यू व्हाट ही डज एग्जैक्टली, व्हाट स्टार. Actually purpose to make the cheap traveling of space. Okay, he wants to do the cheap traveling of space. He actually wants to establish a society on Mars somewhere, right? And he wants to have a colony on Mars. So we can say कि जैसे Britishers were colonized us, तो ऐसे ही Elon Musk is trying to colonize Mars as well. So Elon Musk is new Queen Elizabeth. This is what we can say. अच्छा, sorry. ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है. नहीं, अच्छा, हम नहीं, बहुत पुरानी बात हो गई है, बहुत पुरानी बात है. सॉरी, नहीं, एलन मस्क तो अभी नहीं कर रहा, ये टेक्नोलॉजी तो बहुत पुरानी है ना. तो बस मैंने तो वो बात की है कि जो एलन मस्क कह रहा है, एलन मस्क इज़ एक्चुअली बेसिकली सेंडिंग लॉट ऑफ सैटेलाइट्स एवरी वीक और एवरी मंथ इनटू द ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट. व्हाट आर दीज? लिखिए इसे एंड यूल गूगल इट. ओके, यूल सी कि ये क्या है. बेसिकली ये अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर के अंदर जो है ये ऑर्बिट्स होते हैं, सही है. लोअर अर्थ होता है, लोअर अर्थ ऑर्बिट होता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है, और आपका जियोसिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी अर्थ ऑब्जर्वेटरी ऑर्बिट होता है. ठीक है, वो जो है स्टारलिंक के प्रोग्राम के थ्रू बेसिकली सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं एवरी वीक और एवरी मंथ, यू कैन से. मेरे ख्याल से since 2012 they are doing it, and at the moment they have almost something 3,458 satellites in the orbit, but I am not sure about the figure. You need to check it out. What those satellites do, say, this whole idea of globalization, have you ever heard of this name, this terminology? इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो मेन कोर आइडिया होता है दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का एक बेसिक कोर ये है कि ग्लोबलाइजेशन, आप जब नाम सुनते हैं तो आपको ये समझ आता है कि ओ वाओ, वी आर सो मॉडर्नाइज, वी हैव सक्सेसफुली अचीव्ड सो मच, वी हैव लेवल अप आवर डेली लाइव्स, सही है, एंड वी आर कनेक्टेड विद पीपल, सही है, अक्रॉस द बॉर्डर्स. आपका 7 समंदर पार, आपके एक दुनिया के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक, इवन सैयारों तक यू कैन कम्युनिकेट, सही है. दीज सैटेलाइट्स बेसिकली आर प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी at the time we are living in the age which is very much depends upon the connectivity, सही है. वो कनेक्टिविटी आपको क्या करती है, आपस में लिंक करती है, और आपकी जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र है उसको स्विफ्ट बनाती है, ऐसा ही है. ठीक है, आप में से हर किसी ने ये बात सुनी होगी कि दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ डेटा, दिस इज़ द टाइम ऑफ डेटा, सही है. Data is equivalent to any resource which used to be very much worthy in earlier ages, सही है. Back in like you go back to 30 years and 40 years or something like that. तो पहले ज़माने में लोगों के पास resources होते थे ना, minerals, mines, आपके gold हो गए, आपकी बाकी सारी चीज़ें हो गई कि that is very much worthy for the states, क्योंकि उनको
यूटिलाइज़ करके स्टेट्स जो हैं बेसिकली अपनी इकानमी को बहुत ज़्यादा फ्लरिश करती हैं। आजकल क्या है, दीज डेज इट्स डेटा, जितना ज़्यादा डेटा जिस कंट्री के पास होगा उतना ज़्यादा डेटा जो है वो उस डेटा को सेल करके या यूटिलाइज़ करके अपनी इकानमी को बेसिकली बेहतर बना सकती है। एंड हाउ ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी मच रेलिवेंट विद दिस इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी। इट कैन गो फॉर कोऑपरेशन, स्पेस कोऑपरेशन आपका हो सकता है, ठीक है। आपका जो है वो इसके स्पेस के अंदर आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स भी जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। स्पेस में जैसे आपकी कोऑपरेशन है वैसे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं ना, दोनों, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, राइट। इसके अलावा क्या हो सकता है, कोऑर्डिनेशन हो सकता है लोगों का, कंट्रीज़ का आपस में। Where needed is possible. सॉरी, To avoid major avoidable, to avoid the avoidable. So in situations जहाँ पे one country finds out or predicts something is about to happen, may it be related to weather or anything else. Anything, yeah. They They might can be willing help. to coordinate and help the other country. yeah, right. So there are three main aspects we can say that related to international relations. कौन कौन से हैं मुझे बताएं प्लीज़। What we have just talked about. Conflict and sorry, नहीं, it was coordination. जिस बारे में बात ही नहीं हुई उस चीज़ को यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं। स्ट्रेटेजिक डिस्कशन तो हमने बोला ही नहीं है। वो तो ये कह रही हैं कि अगर सॉरी भाई इंटरनेट में मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल सा सवाल ये कर रही हूँ कि आपने इंटरनेशनल रिलेशंस का नाम सुना, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, सही है। अब इसके अंदर स्पेस डोमेन क्यों इम्पॉर्टेंट है, सही है। एक हमने बात कर ली बड़ी जल्दी इकानमी के लिए, क्योंकि डेटा ड्राइव हो रहा है इकानमी से, सही है। इसके अलावा क्या हो सकता है, most of the applications which we are utilizing at the moment or the technology which we are utilizing at the moment, it was meant for the militaries, it was manufactured or made for the military use, ठीक है। it was not for civilian use. let's suppose आपका जो microwave oven है, ठीक है, now we use it to preheat our food or you know cook our meals and everything, लेकिन उस वक्त पहले बेसिकली जब जिन्होंने भी इन्वेंट किया था तो what were their purpose? You are using GPS in your daily life, right? For navigation, for everything, सही है। And what do you think it was made for? For whom it was made? किसके लिए बनाया गया होगा ये? फौजों के लिए ना, अफवाज के लिए बनाया गया होगा ना, मिलिट्रीज़ के लिए बनाया गया होगा ताकि उनको पता चल सके कि उनका एडवर्सरी या उनके एनिमी की पोजीशन क्या है, ठीक है। Through satellite they could have monitored the location of that their enemies और जो भी एडवांसमेंट हो रही है, सही है, ताकि वो अपनी एक स्ट्रैटेजी डिज़ाइन कर सकें, ठीक है, और उस डाटा के थ्रू जो है वो उस एनिमी को रिटेलिएट कर सकें, काउंटर कर सकें या व्हाटसोएवर जो भी उनका एक पूरा फ्रेमवर्क है उसको लेके चल सकें, सही है। तो पर्पस क्या था, मिलिट्री यूज़ था, लेकिन अभी कौन यूज़ कर रहा है, सिविलियन भी यूज़ कर रहे हैं, हम आप हम में से हर कोई यूज़ कर रहा है ना, ऐसा ही है, ठीक है। इसके अलावा भी देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स विच आई कैन गिव यू जो कि इस डोमेन के अंदर आती हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। अब आपको जो है इमेजेस मिलती हैं, आप में से किसी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि अगर हमें डेटा मिल रहा है, ये तो कनेक्टिविटी वगैरह सारी चीज़ें हो गई। एक टर्म है प्रिसिशन एग्रीकल्चर, हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट? प्रिसिशन एग्रीकल्चर, it's like where should I write it, right here? Through satellite monitoring, सैटेलाइट के थ्रू जो है आपकी, जैसे आपने कहा कि आपकी वेदर फोरकास्ट हो रही है, सही है, आपकी नेविगेशन हो रही है, तो वो सिक्योरिटी के उसमें आ गया, सारी चीज़ें हो गई। आपके मज़ीद डेटा जो है वो कंपाइलेशन हो रही है, ठीक है। तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि ऐसा भी तो हो सकता है, जब वेदर फोरकास्ट हो रही है बाकी सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो हम ये भी तो इवैल्यूएट कर सकते हैं ना
कि हम अगर कहीं पे कोई चीज़ कल्टिवेट कर रहे हैं, कोई क्रॉप कल्टिवेट कर रहे हैं, तो उसके लिए सूटेबल टाइम कौन सा है? क्योंकि सैटेलाइट, वो जो एक बर्ड आई व्यू ऊपर वाला होता है, वहाँ पे किस तरह से वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है, एटमॉस्फेरिक चेंजेस कैसे हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आपकी जो कल्टिवेशन है उसको कितना इम्पैक्ट कर रही हैं, ऐसा है या नहीं है? तो अगर हमें पहले से पता हो या हमें ये प्रेडिक्शन मिल जाए कि हमें लेट्स सपोज जून के महीने में, मैं सिर्फ एक रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, in the month of June there is likely to be monsoon, so we should not have anything, we should not cultivate anything, और वो जो हमें वो करते हैं हम ग्राउंड के अंदर वो सीड सो करते हैं, उसको नहीं करना चाहिए, उस प्रोसेस को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम वो करेंगे तो उससे ये होगा कि वो सारा कुछ जो है वो ख़राब हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इंस्टेड हमें ये अगस्त के मिड में करना चाहिए, तो क्या इससे फ़ायदा नहीं होगा? सही है। एग्रीकल्चर बेसिकली क्या चीज़ है? एग्रीकल्चर से बेसिक क्या फ़ायदा होता है? सॉरी, नहीं, कभी कभी ना, अच्छा देयर इज़ दिस वन मोर थिंग, लेट मी टेल यू, कभी कभी ना हम चीज़ों को इतना कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं कि ना हमें बिल्कुल सामने की सीधी बात याद नहीं है, समझ नहीं आ रही होती। मेरे साथ, मैं वैसे ही बता रही हूँ, जनरली है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। क्रॉप्स किस लिए उगाई जाती हैं? इट्स अ फूड प्रोडक्शन, इट्स योर सोर्स ऑफ फूड। सही है। आप खाओगे कैसे? खाने के लिए ज़िंदा है ना, मतलब सही है, लिविंग बीइंग्स हैं, वी नीड फूड। तो फूड किस तरह से आ रहा है? वो कल्टिवेशन ग्रो कर रही है, वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो कर रही है, उसके ज़रिए से आ रहा है ना। तो अगर वो फूड के अंदर, आई एम हेयर, थैंक्स, अगर हमें ये पता चल जाए कि हमें कब किस वक्त जो है वो एग्रीकल्चर को अपने किस तरह से लेके चलना है, एक क्रॉप को लेट्स से कि किस सीज़न के अंदर करना है, ठीक है, तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। या फिर ये बेहतर होगा कि हम बग़ैर सिर्फ अपने असेसमेंट के थ्रू ही वो सो कर दें और फिर वो बारिश आए, जैसे हम देखते हैं फ्लड्स आते हैं, बारिशें होती हैं तो हमारी पूरी फसल ख़राब हो जाती है, तो उससे कितना ज़्यादा फूड का जो है वो वेस्टेज होता है और आपका इकनॉमिक बर्डन भी इंक्रीज़ हो जाता है। सही है। तो सैटेलाइट इमेजरी के ज़रिए या फिर आप समझ लें कि उस डाटा के ज़रिए जो आपको सैटेलाइट प्रोवाइड कर रही है, यू कैन अचीव दिस गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो यूएन ने गोल रखे हुए हैं ना, कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसके अंदर पॉवर्टी एलिवेशन है, फूड सस्टेनेबिलिटी है, क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट है। सही है। आपकी वाटर रिसोर्सेज हैं, उनका पता चल सकता है, बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती हैं इसके ज़रिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ की एस्पायरेशंस भी आ जाती हैं। हाउ मच डू यू नो अबाउट द पाकिस्तान स्पेस एजेंसी? व्हेन डिड इट एस्टैब्लिश? Does Pakistan has any space agency? Huh? No, I just want to know about it. When US was trying to reach moon, they were asking Pakistan at this time to take images of Indian Ocean. It's not Indian Ocean, okay. I have to tell you this one more thing. So whenever you say, it's always Arabian Sea. सही है? Arabian Sea. ठीक है, it's not Indian Ocean. We do not use Indian in our vocabulary, so they would they would establish this notion that it's actually Indian region or it's more of an influence of India or something like that, right? So we always use this Arabian Ocean. ऐसे ही है ना, पहले अगर आप अपने पुराने मैप्स देखें तो उसमें भी अरेबियन ओशन ही आया हुआ है। पैसिफिक तो अलग है ना, वो तो वो वाला है, अमेरिका वाला है, उधर क्यों जा रहे हैं आप? मैं टर्मिनोलॉजीज़ की बात कर रही हूँ। लेट मी टेल यू दिस वन थिंग, आपके जो थिंक टैंक्स होते हैं या आपकी जो एकेडेमिया होती है, ये टर्मिनोलॉजीज़ कॉइन करती है, ठीक है, और उन टर्मिनोलॉजीज़ को जो है वो लोग एक्सेसिवली यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इसकी कोई एग्जांपल दे सकता है? कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी आपने कभी सुनी हो, कोई कुछ भी, एनीथिंग? कभी आपने कोई ऐसी सुनी हो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कहीं पे भी? याद नहीं है, वेरी गुड। CSS के पेपर में जाके आपने एग्जैक्टली यही बोलना है। एवर हर्ड ऑफ दिस नोशन, दिस टर्मिनोलॉजी? कभी कहीं पे पढ़ी है, कहीं पे सुना है? कौन है ये?
यूएस के न्यूज़पेपर अक्सर यूज़ करते हैं जो यूएस के पुराने एलाइज हैं उनके टारगेट करने के लिए, उनके लिए रोग नेशन का वर्ड यूज़ करते हैं। फराज स्टेट 9/11 के बाद एक टर्मिनोलॉजी कॉइन हुई थी, वॉर ऑन टेरर, सही है। फिर पाकिस्तान को कहा जाने लगा पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट कंट्री, ठीक है। टेररिज्म इमर्जेस फ्रॉम पाकिस्तान और यहीं पे ही कल्टिवेट भी होता है, सारा कुछ यहीं पे होता है। तो दे यूज़ टू कॉल पाकिस्तान एज अ रोग नेशन, ठीक है, कि यहाँ पे जो है ना वो न्यूक्लियर एसेट्स दे आर नॉट सेफ, और यहाँ पे कोई भी जो है ना जिहादिस्ट उठ के न्यूक्लियर वेपन्स को जो है नुकसान पहुँचा देगा और कोई भी इस तरह की चीज़ कर देगा किसी भी तरह से, और मतलब सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं यहाँ पे, इस तरह से बात करते थे। तो उन्होंने अपनी एकेडेमिया के अंदर ये यूज़ करना शुरू कर दिया, सही है। तो फिर जब जब कोई पाकिस्तान की बात करता था, ओह अच्छा रोग नेशन, ओके इट्स पाकिस्तान, ऐसे जो है वो एक नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है, सही है। ऐसे लोगों के माइंडसेट बनाए जाते हैं, ठीक है। ओवर द ईयर्स बहुत सारा काम होता है, बट ऑफ कोर्स इट फॉल्स in the domain of information operations, psychological operations, so we are not going there. What I was telling you is, मैं खुद भी मेरे जहन से निकल गया what I was telling you about. हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि एस्पायरेशन, एक मिनट प्लीज़, मैं आपको ये बता रही थी कि डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट एस्पायरेशंस हैं, और मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या पाकिस्तान की कोई स्पेस एजेंसी है या नहीं है। आर यू ए स्टूडेंट? अच्छा, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है, क्या नाम है उसका? कोई मुझे एब्रीवेशन बता सकता है? SUPARCO, ये क्या है, मतलब इसकी एब्रीवेशन क्या है, मुझे ज़रा ये तो बताएं। सेंटर? आप लोगों ने CSS देना है? आर यू सीरियस अबाउट इट? नहीं, इट्स नॉट अ फनी थिंग, आई एम डैम सीरियस अबाउट इट। लाइक दिस इज़ योर नेशनल स्पेस एजेंसी एंड यू डोंट नो हाउ टू स्पेल इट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ योर नेशनल स्पेस एजेंसी, एंड दिस इज़ हाउ यू गोना एस अ CSS पेपर। आर यू सीइंग व्हाट आई एम सीइंग? वेयर एग्जैक्टली डू यू स्टैंड? आप देख रहे हैं कि आप लोग कहाँ हैं और आपकी प्रेपरेशंस कैसी हैं? हाँ, it's a basic thing. When did it establish? 68? 1963? 61? और सॉरी, और कोई है? किसी ने गैस लगाया है? और कोई? Anyone? 68 वाले आप थे? कहाँ से आवाज़ आई थी 68 की? 68? 90 what? 63, 61. अच्छा, why do you think 68 में कैसे बनी है? रेफरेंस, सॉरी प्लीज़, सॉरी कम अगैन। कहाँ पढ़ा था? हाँ जी, 1963, वाई? कौन सी बुक में? सॉरी, 1961 से ये पहली 1961 में तो अब्दुल सलाम ने जो है ना सेटेलाइट का जो है भेजने की कोशिश की, तो उस टाइम जो है ना चेयरमैन थे, मतलब सीनियर थे वो अब्दुल सलाम, ये पाकिस्तान स्पेस एजेंसी के। एग्जैक्ट डेट भी नहीं है, लेकिन 61 से पहले हुई। पॉइंट ऑफ फूड फॉर थॉट ये है कि आपको डेट्स याद होनी चाहिए। इट वॉज established in 1961, right? And in 1962, Pakistan, with the collaboration of NASA, don't do this, or I'll throw you out of the class without any mercy. 1962 के अंदर पाकिस्तान has sent a sounding rocket, Rahbar 1,
into the space. Does any one of you had this prior knowledge into your brain or something? पता था ये? क्या हालात हैं आप लोगों के, देख रहे हैं आप लोग, इंतहाई ख़राब नागुफ्तबा हालात हैं, सही है। अच्छा, एनीवेज, सुपारको क्या करता है, कभी किसी ने देखने की कोशिश की है? कुछ करता भी है या नहीं? ऐसा ही नहीं करता? आपने सर जैसे हिलाया तो मुझे समझ आया कि नहीं करता होगा। कंपैरिजन नहीं चल रहा है, बेसिक सवाल है, सीधा जवाब। करता है नहीं करता है? एटमॉस्फेरिक रिसर्च, क्या एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है? चांद सितारे, फूल और मैना, स्पेस पे रिसर्च होती है। अच्छा, और जी एनीवन एल्स? ये जो कोलैबोरेशन हुआ था नासा के साथ सुपारको का, क्यों हुआ था, कोई बता सकता है? मैंने अभी बताया है, दे हैव सेंट अ साउंडिंग रॉकेट, सही है। व्हाट वाज दैट? प्रॉबेबली यू वांट टू नो अबाउट इट, यू वांट टू रीड अबाउट इट। नहीं पढ़ना चाहिए इस चीज़ को, तो आज जाके पढ़ेंगे। सुपारको की वेबसाइट है, खैर से अल्हम्दुलिल्लाह, उसको जाके थोड़ा सा जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। आप लोग देखेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा, लिटरली वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, सही है। तो प्लीज़ एहसान कीजिएगा उनके ऊपर, आप लोग जाके आज सुपारको की वेबसाइट देखिएगा, ठीक है। और सिर्फ देखनी नहीं है, उसको तरीके के साथ अच्छा टाइम लगा के फॉर एन आवर और सो यू हैव टू गो इन एवरी सेक्शन, यू हैव टू चेक एवरी टैब, ओनली देन यू विल एबल टू ग्रास्प दैट व्हाट एग्जैक्टली योर स्पेस एजेंसी इज डूइंग, व्हाट वी आर इन्वॉल्व्ड इन, सही है। It is very much easy to compare our country with anyone or our capabilities with anyone, but it is very much difficult to know the fact, to check the fact and the information which we have received. सही है। I know when Chandrayaan was launched, everyone was so they were so much overwhelmed that India has launched this and that and Pakistan has not progressed and this and that. But do you guys has this sort of realization that Pakistan has been constantly faced challenges on its eastern and western borders? We have been in constant threats from our eastern neighbors and our western neighbors. Do you acknowledge that? समझ आ रहा है मैं क्या फरमा रही हूँ? पाकिस्तान को अपने ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे हमेशा से बहुत सी सिक्योरिटी थ्रेट्स रही हैं, ठीक है। So if you are constantly engaged, if your security forces are constantly engaged, आपका वो इकोनॉमी, वो आपका एलोकेटेड बजट जो कि आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी या दूसरी चीज़ों के ऊपर, आपकी प्रोग्रेस के ऊपर जो है वो स्पेंड होना चाहिए, वो चीज़ अगर आपके सिर्फ और सिर्फ अपने सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के ऊपर जाएगी, तो डू यू रियली थिंक कि देयर विल बी अ रूम to do something else or to allocate funds for such sort of business? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. However, this is not the excuse. We are doing so much and very much assisting the government at the moment. Suparco has been involved in utilizing the space technologies peacefully as of yet since 1962. ठीक है. ऑल्दो कि हमारी डायरेक्शन जो है वो, क्योंकि वी हैड टू सर्वाइव, तो हमने उस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ करते हुए अपने सर्वाइवल को, अपने डिफेंस को भी इन्हेंस किया है। हमने उस चीज़ को भी यकीनी बनाया, इंश्योर किया है कि हमारा डिफेंस इम्प्रेग्नेबल हो, ठीक है, उसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन इन लिमिटेड कैपेसिटी व्हाट एवर द सैटेलाइट्स वी हैव, ठीक है, उन सैटेलाइट्स को यूटिलाइज़ करते हुए सुपारको इज़ प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सिग्नल्स और फैसिलिटीज़ टू पाकिस्तानी अवाम, एंड इट इज़ कोलैबोरेटिंग विद अदर्स एज वेल। कैसे? देयर इज़ दिस थिंग सेक्रेड, नाउ यू नीड टू गूगल इट एज वेल। सेक्रेड और सुपारको कोलैबोरेशन, आप ये लिखें। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ आउटर स्पेस, बेसिकली इसके अंडर जो है ये एजेंसी है। आपको याद होगा 2005 के अंदर अर्थक्वेक आया था, सब्सिक्वेंटली उसके बाद फिर 2006 में भी 2000 फ्लड्स आए थे।
उसके बाद फिर 2010 और 2012 के अंदर बहुत ज़्यादा डेडली फ्लड्स भी थे और दोबारा से जो है वो एक बहुत ज़्यादा क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी हुई थी, ठीक है। सुपार्को इज़ बेसिकली आपके रीजन के अंदर जो है वो यूएन की एजेंसी के साथ कोलैबोरेट करता है अपनी टेक्नोलॉजी को वो करने के लिए, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। उसमें क्या होता है कि वो वेदर फोरकास्ट आपकी हो रही होती है, ठीक है, आपकी मॉनिटरिंग हो रही होती है सैटेलाइट इमेजरी के ज़रिए से, ठीक है। कहीं पे लेट्स सपोज़ कि अगर कोई ऐसा डिज़ास्टर प्रोन एरिया है जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर है, तो देख रहे होते हैं उसको कि वहाँ पे कोई चेंजेस तो नहीं आ रही हैं, क्योंकि पहले से एकदम से तो कुछ भी नहीं होता ना, इट्स अ प्रोसेस, लॉन्ग टर्म प्रोसेस और शॉर्ट टर्म प्रोसेस जो भी कह सकते हैं आप। एक वन बाय वन हमारी लाइफ में कभी भी कोई भी चेंज होती है तो वो एकदम से चेंज नहीं आ जाता है, पहले कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ऑलरेडी वो इन प्लेस होती है, उसके बाद फिर वो सबसे फिनोमेना के अंदर है, नेचर के अंदर भी यही है, ठीक है। आपने ट्रीज़ काट दिए, एक तो गर्मी बढ़ना, कराची की बात करते हैं, हीट वेव की बात करते हैं। 2015 के अंदर जो कराची में हीट वेव आई थी जिसमें thousands of number of people have been died, right? Why it happened? Because we had cut down a lot of trees in Karachi, right? So what happened? Gradually the temperature has started to increase, right? जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ होने लग गया तो देयर वाज अ पॉइंट कि जहाँ पे वो चीज़ जो है वो आम लोगों से नहीं, ऑफ कोर्स आपका क्लाइमेट इतना ज़्यादा समझ लें कि इतना वल्नरेबल है, तो वो आम लोगों से वो चीज़ नहीं बर्दाश्त हुई, तो वो हीट स्ट्रोक के अंदर वो चीज़ कन्वर्ट हो गई एंड देन पीपल पैस्ड अवे, सही है, आहिस्ता आहिस्ता करके। अगर एट फर्स्ट प्लेस आपके ट्रीज़ कट डाउन नहीं होते तो क्या ये चीज़ होती? ये सिर्फ एक कराची की बात नहीं है, ये पूरे दुनिया की बात है। क्लाइमेट चेंज की जो हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा पॉइंट क्या है हमारे पास? डिफॉरेस्टेशन, सही है, लैंड क्लियर कर रहे होते हैं, सही है। उसकी वजह से क्या होता है? उस डिफॉरेस्टेशन की वजह से आप सोचें कि आपके पूरा जो वेदर साइकिल है वो पूरा का पूरा आपका वेदर फिनोमेना चेंज हो गया है, पैटर्न्स जो हैं आपके रेन पैटर्न्स चेंज हो गए हैं, ठीक है, आपकी वाटर साइकिल इम्पैक्ट हुई है, सही है, आपका टेम्परेचर राइज़ हो रहा है, आपका जो है वो इसका क्या कहना चाहिए, जो आपका सी लेवल है दैट इज़ राइजिंग, सही है, सी के अंदर जो टेम्परेचर है वो राइज़ कर रहा है, तो उसकी कितनी सारी इम्प्लिकेशन हो सकती हैं। सुपार्को क्या कर रहा है अपनी बेस्ट कैपेसिटी के अंदर कि वो जो भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाली चीज़ें होती हैं लेट्स से, उनके अंदर जो यूएन की एजेंसीज़ आती हैं आपको सर्च एंड रेस्क्यू करने के लिए, या फिर आपको जो है वो गुड्स की वो करने के लिए, अगर कहीं पे ऐसे लोग हैं जो कि इम्पैक्ट जिनके ऊपर आया है, ठीक है, उनको जो है किस तरह से कोई भी मदद पहुंचानी है, कोई भी उनको किस तरह से रेस्क्यू करना है, उनको कैसे फैसिलिटेट करना है, ये सारी चीज़ें कर रहा होता है। फिर आपकी अर्बन प्लानिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, राइट। सुपार्को के पास डेटा है I think pre-1980s or something, but you need to check this, चाहिए, बहुत पुराना डेटा है जिसके ज़रिए उसने सुपार्को ने अभी रिसेंटली लास्ट ईयर या मेरे ख्याल से couple of years back perhaps assisted Karachi's administration in finding out the old circular railway lines, जो कि ओल्ड आपकी पहले जो सर्कुलर रेलवे चलती थी ना कराची में, जहाँ जहाँ पे पटरियाँ थी, जहाँ जहाँ पे क्या था, तो वो इमेजरी के ज़रिए, उस वक्त की इमेजेस के ज़रिए से सुपार्को वॉज एबल टू असिस्ट और शेयर द डेटा विद द गवर्नमेंट, सो द गवर्नमेंट कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, ठीक है, समझ आ रही है। एंड इट इज़ गोइंग ऑन इन वेरियस एस्पेक्ट्स और इट इज़ इन कोलैबोरेशन विद वेरियस एजेंसीज़। सुपार्को क्या कर रहा होता है? वाटर लेवल को चेक रहा होता है, आपके जो रिवर्स के अंदर वाटर लेवल है वो कब इंक्रीज़ हुआ है, कब डिक्रीज़ हुआ है। हमें सबसे ज़्यादा ख़तरा इसी बात का होता है ना कि इंडिया ने अपने स्पिलवेज खोल दिए तो हमारी जो है वो फ्लड्स हमारे पास आ जाएंगे और सारा कुछ हमारे एकदम से हमें प्रिपेयर होने का टाइम नहीं मिलेगा। हमारे बहुत सारे विलेजेस हैं विच आर देयर बाय द रिवर साइड, सही है, तो उनको नुकसान पहुँचेगा, क्रॉप्स हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो वो क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो उनके लिए क्या कर रहा होता है कि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जनरेट हुआ हुआ है, तो पंजाब में बिफोर 24 आवर्स, ठीक है, और सिंध में 12 आवर्स बिफोर।
SEPARCO कैन पास दिस वार्निंग कि अगर लेट्स इन केस ऑफ वॉर और जो कुछ भी है, वैसे भी अगर इंडिया पानी छोड़ता है या आपके रिवर का वो ज़्यादा होता है, आपका जो है ना रिवर लेवल, वाटर लेवल आपका राइज़ हो जाता है, ठीक है, तो वो बता देते हैं कि हम जो है वो यहाँ पे अपने स्पिलवेज खोल दें ताकि वो पानी आगे चैनल्स में चला जाए, कैनाल्स में चला जाए, ताकि वो फ्लडिंग वाली सूरत हाल ना हो। अभी लेटेस्ट कहाँ पे हुई है फ्लडिंग? कैन समबडी टेल मी? सॉरी, ज़ोर से बोलें। नहीं, मैं ग्लोबल उसकी बात कर रही हूँ। अभी कोई इवेंट हुआ है लीबिया, स्पेन में भी हुआ है, लीबिया के अंदर जो है वो अभी रिसेंटली फ्लडिंग हुई है और कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग ख़त्म हो गए। सही है, क्योंकि उनके पास वो उनके जो रेजरवायर्स थे, उनके डैम्स जो है दे जस्ट ब्रोक अवे। सही है, ऐसा ही है। तो आपका एक्सेस वाटर आएगा तो डैम आपको ऑफ कोर्स ओवरफ्लो करेगा और वो ओवरफ्लो पानी तो अपना रास्ता बनाएगा ना, कहाँ जाएगा पानी? पानी ने तो हर हालत में अपने आप को निकालना ही है। तो वो फिर ये होता है कि अगर आप वो डैम्स में पानी ओवरफिल हो जाए तो आपके देहात ज़ेरे आब आ जाते हैं। सही है, आपकी फसलें वगैरह जो मैंने बताया, खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं। तो वो जो वार्निंग है वो इसलिए हेल्पफुल है कि हम अपने यहाँ पे चीज़ों को बचा सकें, अपनी क्रॉप्स को बचा सकें, लोगों को बचा सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर को बचा सकें। इज़न्ट इट हेल्पफुल? सही है।